बैकलिंक आपने बोला था, Yeah. कितने टाइप के होते हैं बैकलिंक्स? डू फॉलो और नो फॉलो होते हैं। क्या डिफरेंस डू फॉलो हम ले सकते हैं सर, क्योंकि उसमें पेज अथॉरिटी, हाई पेज अथॉरिटी, डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, और लेस स्पैम स्कोर के हिसाब से हम ले सकते हैं। नो फॉलो नहीं ले सकते। नहीं दे सकते नो फॉलो? हेलो, यस मैन सर। Yes, Mansa. So please tell us about yourself. I'm Manasa Adyanthaya. I'm married and I stay with my husband, and I have 2 kids, and my in-laws also stay with me. And I have done my, I'm basically from Mangalore, and I have done my DM digital marketing expertise program certification course from Staines Academy. Previously, I had done my PG in travel and tourism from Koni Academy, Mumbai, and I have done my graduate. I'm a science graduate from Gujarat University, and I have worked in global. First job was my. I have worked in Kesari Tours, Mumbai. I was in domestic operations, and I shifted to Nasik, and I joined Global Tours as a international package operations only. And then after a long break, I again resumed my job in 2019, and again I joined Global Tours, and I was looking after visa as a visa executive, and all over visa department I was looking after. Then after that, pandemic came and I had to again take a break. And then after that, I have done my digital marketing course, and I'm here. Great. So when you say you were dealing with domestic packages, Yes. those were like tour plans for people, for group of people? Actually, I was I was not in sales, front office sales. I was in back office, where I was looking after the operations, like package planning, and we had to deal with the suppliers for negotiation. Right. Okay, and designing the tour packages. That was the main part of us. Okay. And then when you joined the Global Tours again Yes. in visa processing, Yes. so you are dealing with the customer and with their data and processing for the visa? Yeah, actually, we in Nasik, we were the agents. So we had to send the documents to the suppliers who were sitting in Mumbai. They used to hand over the documents to VFS. But initially, during online also, they used to do the same thing. For US visa, you had to send there only, because UK also. But later on, when I joined, I started up doing Canada visa online, because all the documents I had to attach online only. Right. And then Malaysia visa also, I did e-visas, whatever e-visas were there, I was doing it by myself only. Okay. So how much time it was taking for you to process one visa application for a particular? For Canada, it takes a lot of time, sir, because you have to attach all the documents, ITR with all the this, so it takes half of the day. It consumes. So as I would keep the markup also the same for this. And for e-visas, you had to only see the photos thing. You had to be a little bit careful. Yes. Other rest all things, it would be happening within 1 hour. Right. It would process. All right. And after that, you started with digital marketing. Yes.
Now, in digital marketing, there are many modules. Yes. Which is your favorite one? My favorite one is SEO and Google Ads, Meta Ads. Okay. So, can you tell me in SEO, especially on-page SEO, Yes. what is the technical SEO part of Technical part is canonical URL. There must be canonical URL and schema. You must have schema. Then page loading. It should be around 4 seconds, and the page size should be of 200 2 MB. Sorry, 2 MB, and redirection of the URL. this? Okay. If there is a broken URL, then redirection, permanent redirection. So tell me, if I have a website which is mainly focused on images. Okay. So I'm creating imagebazaar.com or something like that where image is the main priority. Yes. And because of images, my page size is definitely increasing. Yes. Or right now it is like 8-9 MB. What is the solution that you will choose to? We can compress the image, sir, by the tool Kraken. You have many tools, free tools, so you can compress the image and you can put the alt text also with the keywords. Okay. So even if I have compressed, Yes. the image is around 100 KB, for example, but I'm having more than 50 images on my site. Any way you can improve the performance? Yes, you can improve the performance, but 50 images are too much, sir. So you can tell the client just to reduce the images. But that is my job. That is what I am supposed to showcase. So he can take on the other way also, like after like 20 or 20 images he can put, and after that after some period he can put another 20, like that he can. Is it possible? How is it possible that I am having 20 images Yes. and then after some period I will load 20 images? How it is possible? He can create a page and like with some of the deals, he can promotions or anything, then he can, that way he can show. Have you heard about lazy loading? No, sir. All right. So now you said in SEO you talk about canonical. Yes. See, my website is having canonical. Yes. His website is not having that. Yes. What is the difference? So canonical, you give to the page where duplications, there won't be a duplications of pages. So we we create a canonical URL, a main unique URL. So that might, the duplication won't be there in any this. So Google will give you that URL, reads that URL. Google is going to read the URL. Yeah. So, when I was creating my website, I only created 5 pages website. Okay. So there are 5 pages. There is no duplicacy. Even if he created his website, he created only 5-page website. So he didn't create any duplicate page. He's just having original 5 pages. Is it necessary for him to have canonical? Yes. It is Why? necessary. He has not created any duplicate page. But still it is required, sir. Your page should have your website should have a canonical URL is a must. Okay. So how this duplicate thing will work? Because there is no situation of duplicacy. Yes. He didn't create. So how the canonical is helping here? Is there any other way through which duplication may happen? By fraud thing also it might happen. Some fraud with. Like, for example? Some fraud might take away, look-alike they might do this. So वो canonical रहना बहुत जरूरी है. Okay. ठीक है. Yes, Aditya sir. Yes. In SEO,
Tell me what is robot.txt file? Robot.txt file is you are not allowing some confidential pages to वो disallow करते हैं हम लोग, जहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं करने देते हैं, कॉन्फिडेंशियली डिसअलाउ कर देते हैं. किसके लिए करते हैं हम ये सब? यूजर के लिए, बॉट के लिए? बॉट यूजर के लिए, मतलब कोई अपना विजिट करता है, कोई ये देखता है, पेज देखता है, तो वो हम डिसअलाउ करते हैं. कोई क्लिक करेगा तो कॉन्फिडेंशियल वो हम लोग नहीं कर सकते. कोई भी डेटा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल सीवी रहे या बैंक का कोई ये रहा, तो उनके कोई डिटेल्स वगैरह हम लोग वो डिसअलाउ कर सकते हैं robot.txt डाल के. पर उससे ह्यूमन रुकेंगे? आप मान लीजिए मैं, मेरी वेबसाइट पे एक पेज है और बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं चाहता कि आप उस पेज को देखो, Yes. तो क्या मैं robots.txt से आपको ब्लॉक कर सकता हूँ? हाँ सर, डिसअलाउ तो कर सकते हो ना, और वो मतलब डिसअलाउ किसको करते हैं? That's बॉट दिखाता नहीं है, मतलब वो पेज रीड नहीं करता So इंडेक्सिंग. that was the question. Yes. बॉट को डिसअलाउ करते हैं या ह्यूमन को? बॉट को डिसअलाउ करते हैं. What is indexing? इंडेक्सिंग इज जो डेटा रीड करता है और वो सर्वर पे डालता है. बॉट What is crawling? क्रॉलिंग, बॉट रीड करता है जो भी डेटा हम लोग ये करते हैं. Okay. Tell me what is schema? Schema is उसके टाइप्स पता है सर, मतलब वो रेटिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहता है. तो रेसिपी स्कीमा रहते हैं, प्रोडक्ट स्कीमा रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं. तो वो पेज को पेज में अगर हम डालते हैं तो वो एक ये बताता है कि इसके बाद क्या है, ऐसा. Okay. What is alt text? अल्ट टेक्स्ट हम इमेज पे डालते हैं कि रिगार्डिंग व्हाट दैट इमेज इज. Okay. हमने अगर इमेज को alt text नहीं दिया तो बॉट को कैसे समझेगा कि इस इमेज कौन से किसके बारे में? करेगा सर, तो हमको है ना कीवर्ड के साथ उसको देना पड़ता है. अल्ट टेक्स्ट जरूरी है, एक टेक्स्ट देना पड़ता है. So SEO के लिए आप कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? 3 टूल बताइए मुझे जो कि आप SEO में बहुत कॉमनली यूज करते हैं. सेमरश करते हैं सर, मॉज भी करते हैं, एंड कीवर्ड IO, yourtool.io. कीवर्ड डॉट. So SEMrush के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च करते होंगे. यस. Can you tell me based on intention of the user, हाँ. keywords के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है सर. इंफॉर्मेशनल है, एंड ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है, एंड नेविगेशनल है. Okay. So जब आप टारगेटिंग करिएगा और आपके पास लिमिटेड कीवर्ड ही चूज करने हैं, हाँ. so for example 5 ही कीवर्ड्स के लिए आप कर रहे हो मेंशन, which one you will use? सर डिपेंड्स अपॉन, अगर ट्रांजैक्शनल या फिर कमर्शियल हम यूज करते हैं, और कीवर्ड डिफिकल्टी भी देखते हैं हम लोग. एंड कीवर्ड डिफिकल्टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? लेस देन 30 होनी चाहिए. ओके, बट नहीं, जो केडी फील्ड है हाँ, सेमरश का, उसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? उसकी 100 तक भी हो सकती है. 100 तक. हाँ, पर हम 330 से कम वाला लेते हैं. क्यों? बिकॉज वो हेल्प करता है हमको रैंक करने में. यो इजी है. ये इजी है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च, हाँ. सेमरश से आप और क्या करते हैं जो आपको एसईओ में हेल्पफुल होता सेमरश में हम लोग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं. है? हाँ, वो पर- साइड. हाँ. यस. देन इवन बैकलिंक के ऑडिट्स भी होते हैं सर. वहाँ पे एक लिंक है, लिंक बिल्डिंग में नीचे बैकलिंक ऑडिट. कोई भी हमको बैकलिंक लेना हो, अगर देखना हो, हमने लिया है, हमें मिला है, तो हमको उसको स्पैम स्कोर या फिर सब कुछ चेक करना हो, तो हम उसको ऑडिट कर स्कैन करके हम देख भी सकते हैं सर.
So what is spam score and how you will improve the spam score? Spam score. Oh, I guess. Okay. So बैकलिंक आपने बोला था, Yeah. कितने टाइप के होते हैं बैकलिंक्स? डू फॉलो और नो फॉलो होते हैं। क्या डिफरेंस है? डू फॉलो हम ले सकते हैं सर, क्योंकि उसमें पेज अथॉरिटी, हाई पेज अथॉरिटी, डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, और लेस स्पैम स्कोर के हिसाब से हम ले सकते हैं। नो फॉलो नहीं ले सकते। नहीं दे सकते आप फॉलो? मतलब ले सकते हैं पर बैकलिंक तो आप कोई भी ले सकते हैं, यस। लेकिन अगर आपको चांस मिले हाँ। तो आप पहली प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? डू फॉलो। डू फॉलो। यस। एंड टेल मी 3 ways you will get do follow backlinks. हम क्वारा में आंसर्स ये कर सकते हैं। पूरा से आपको do follow backlink? नहीं, हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं, आर्टिकल वगैरह कुछ भी, तो हम उससे भी ले सकते, ईमेल या फिर गेस्ट लेक्चर्स, गेस्ट आर्टिकल से भी मिल सकता है। Okay. Any other way? Any other way? सोशल मीडिया पे भी हम लोग ये आपको करके do follow मिलेगा? एंगेजमेंट में हम लोग ले सकते हैं। पर do follow मिलेगा वहाँ से? या no वो follow हमको मिलेगा? हमको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हो? सो वही से मेजर इससे। Okay. ठीक है, आपने लिखा हुआ है इंटरेस्ट के अंदर ट्रैकिंग इन ट्रैवलिंग। यस। रिसेंटली इस ईयर आपने कोई ट्रैकिंग? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं, अभी 2 साल से तो नहीं किया है। लास्ट आपने कहाँ किया था? हमने गोकर्णा में किया था। अच्छा, तो वहाँ के बारे में बताइए, क्या? ग्रीनरी अच्छी है, रेनफॉल वही कोस्टल साइड है सर, कर्नाटका में एक छोटी जगह है, तो वहाँ पे अच्छा रहता, वेदर वाइज सब अच्छा रहता है। ओके, सो Greenery जिनको वाला। अगर देख रहे होंगे आपको, आपके वीडियो को, तो गो करना अगर जाना Yes, हो तो yes, कौन से definitely. मंथ में जाना चाहिए? यू कैन गो इन मंथ ऑफ आफ्टर सितंबर। अभी तो बहुत हैवी रेनफॉल रहेगा। राइट। वहाँ पे बीचेस भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, कोस्टल साइड है सर, तो बीचेस अच्छे हैं। बाकी आपके टेम्पल्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। और अगर किसी को नासिक महाराष्ट्र से जाना हो तो कनेक्टिविटी कैसे होगी? आप मंगला से ट्रेन से जा सकते हो, अच्छा, जो डायरेक्ट डायरेक्ट है सर। मंगला लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप। वेरी गुड। यस, यस, अपने गूगल एड्स मेंशन किए अपने स्किल्स में। गूगल एड्स में मुझे बताइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गूगल एड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ गूगल एड्स, ब्रांड अवेयरनेस, सेल्स, लीड्स एंड ट्रैफिक, ये कर। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एड। टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एड, रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव एड। टेल मी 2 साइजेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव एड। रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, स्मॉल स्क्वायर 200 by 200, और एक लीडर बोर्ड है, उसका मुझे साइज एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि हम जो पैनल पे जाते तो वहां पे आ जाता है, तो वो आदत नहीं। कितने MB तक हम इमेज अपलोड कर सकते हैं गूगल एड्स नॉन रिस्पॉन्सिव एड में? एमबी, वो MB में कर सकते हैं, KB में करते हैं? केबी में इतना ये नहीं, जो क्रिएटिव बनाते वो हम लोगों ने किया है, तो वो इतना एमबी वगैरह हमने ये नहीं किया। ठीक है, मुझे बताया बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ गूगल एड्स। बिडिंग स्ट्रैटेजी ऑफ गूगल एड्स मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटेड रहता है। मैनुअली तो हम डिसाइड करते हैं कितना क्या है। ऑटोमेटेड में मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन रेट, और टारगेट इम्प्रेशन शेयर। ओके, क्या होती है ये टारगेट इंप्रेशन शेयर स्ट्रेटेजी? टारगेट इम्प्रेशन शेयर्स कितनी बार आपको हमारा एड दिखा, उसके हिसाब से रहता है। वो जो अवेयरनेस के लिए रहता है, ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस के लिए। ओके, सर्च एड में मुझे बताइए हेडलाइन की लिंक कितनी रहती है? हेडलाइन की क्या, क्या कितने कैरेक्टर्स की लिंक? 30, 30। और डिस्क्रिप्शन की? 90, और डिस्प्ले पाथ की?
डिस्प्ले पाथ की 60 उसके बाद के 60 रहती है। नहीं, उतना आइडिया नहीं है सर, 60 नहीं रहता। सर्च एड में मुझे बताइए कौन कौन से टाइप के एसेट्स है। कॉल आउट एसेट्स है, कॉल आउट सॉरी कॉल इन कॉल आउट है, फिर स्निपेट स्ट्रक्चरल स्निपेट्स है, फिर प्रमोशनल, प्राइस, लोकेशन, कॉल कॉल आउट नहीं है वो, कॉल टू एक्शन है, एंड साइट लिंक है जो ब्लू में हाईलाइट होता है। बस उतना। हेडलाइन आप डाल सकते हो, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, जितना 3 से 4 बार हेडलाइंस डाल सकते हो, वो बिजनेस नेम भी एक हेडलाइन के हिसाब से ही रहता है। सो मनसा, आप मुझे अपने अंदर के 2 वीकनेसेस बताइए। इम्पेशंस सर। इम्पेशेंट है। यस। मुझे एक एग्जांपल दीजिए, कैसे कोई ऐसी सिचुएशन जो रिसेंटली हुई हो और आपको लगा कि मैं पेशेंस रखती तो बेटर। सर ऐसे बहुत सारे घर में रोज रोज होते रहते हैं, वो अभी रिसेंट की बात नहीं है, आज सुबह की भी बात हो सकती है, कल की भी हो सकती है। बच्चों के साथ कभी इम्पेशेंट, कभी एक्चुअली वो जब स्कूल से आते हैं, दोनों आते हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ बोलना रहता है, तो वो दोनों लग पड़ते हैं। तो मैं उनके एक स्कूल का टाइमिंग क्या है? 3 o'clock 3 o'clock दे कम, 2:30 स्कूल खत्म हो जाता है। मॉर्निंग कितने बजे स्टार्ट? 7:45। हम राइट। सो जब बच्चे आते हैं देन वो फिर आपके पीछे पड़ते होंगे। हाँ, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ स्कूल की बातें सुनानी पड़ती है, तो मैं पहले बोलती हूँ, पहले छोटा वाला बोलेगा, उसको बहुत सारी रहती है। एज क्या है? या एल्डर वन इज 12 years और यंगर वन 7.5 years। अच्छा, गैप बढ़िया है। लेकिन मुझे ये बताइए, सो हाउ यू आर प्लानिंग टू गो विथ करियर, द जॉब थिंग, whether you want that, or how you will plan the day if you are सिलेक्टेड सर, अभी कैसे है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, व्हेन दे नीडेड मी एज अ टोडलर ऐसे, तो मैंने ब्रेक लिया था। नाउ मेरे बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मम्मा आप कुछ करो, एंड आई वॉज वेरी एम्बिशियस ऑल्सो, तो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मम्मा आप कुछ अपने आप के बारे में, मतलब आप हमको हमेशा ये करते हो, तो अभी आप भी कुछ करो। तो ये एंकरेजमेंट मैटर्स करता है मुझे बहुत सर। तो मुझे जॉब करना है, अगर रिमोट मिला तो इट्स वेल एंड गुड, अगर ऑफिस का भी रहा तो 10 to 6 इज फाइन फॉर मी। Okay, so those 3 hours they can manage. बिकॉज घर पे है, इन-लॉज हाँ, in-laws हैं जैसे आपने बताया। Okay, so गूगल एड अगर मुझे चलाना है और मुझे 1 लाख का बजट मिला है, यस, रियल स्टेट प्रॉपर्टीज 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स हैं और मुझे पुणे में चलाना है ad. यस। How you will divide this 1 lakh rupees and which ad you will run? मेजरली सर सर्च एड के सर्च डिस्प्ले एड पे ज्यादा ये करूंगी, मतलब ओनली गूगल एड्स ही चलाना है क्या? This 1 lakh is for Google ad. Okay. अगर आप और भी कोई करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, बट उसका बजट अलग से। तो सर्च एड पे अराउंड 20 या 30, क्योंकि ट्रैफिक्स ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए, एंड सेल्स के लिए भी, सॉरी लीड्स के लिए जहाँ पे फॉर्म अपने लगते हैं, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे 40 लगाऊंगी। कौन सा ad चला रहे हैं आप? लीड, सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड, सर्च एड में, सॉरी सर्च एड में ही लीड पे लीड आ जाता है। सो लीड सबमिशन फॉर्म, हाँ, एसेट यूज कर रही हूँ, एंड उसके बाद डिस्प्ले एड पे आई विल अदर 30,000 मैं डिस्प्ले एड पे करूँगी। And what you are going to do with achieve with display ad? What objective you will achieve? सर उसमें हम जो भी है क्रिएटिव्स आते हैं, जो एडवर्टीज होते हैं, डिस्प्ले नॉन रिस्पॉन्सिव एड्स में हम
जो डिस्प्ले करेंगे कॉल टू एक्शन वगैरह, तो लोग उस पे देख के क्लिक भी करेंगे एंड हम उस पे लीड भी ये कर सकते हैं। ओके, तो आपने 40,000 खर्च किए थे सर्च एड पे और 20-30 हजार रुपये अभी तक आपने खर्च किए डिस्प्ले एड पे। यस, स्टिल यू हैव 30,000 रुपीज। 30 अवेयरनेस के लिए करेंगे मैक्सिमम। जो कौन सा वीडियो ad चला सॉरी वीडियो एड्स पे भी हम लोग डाल सकते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस के लिए भी रहता है उस पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो लोग उस पे आजकल देख के भी वो आ जाएंगे, जो भी एड्स वगैरह, जैसे वीडियो एड्स पे आज का ये हमारा ये रहा, तो उसमें ज्यादा क्लियर रह के उसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो 40,000 सर्च एड पे 30,000 डिस्प्ले एड पे 30,000 वीडियो एड पे। लेकिन फिर पूरे 1 लाख में आपने कहीं भी रीटारगेटिंग नहीं की है। ऑल सर डिस्प्ले एड्स में हम लोग लीड में भी हम लोग रीटारगेटिंग कर सकते हैं। लीड मतलब आप सर्च एड बोल रहे हैं। सर्च एड पे, सॉरी सर्च में नहीं, डिस्प्ले एड पे हम लोग कर सकते हैं रीटारगेटिंग। ओके, तो इज दैट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी रीटारगेटिंग? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ रीटारगेटिंग, क्योंकि लोग देखेंगे और वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, तो वो लिंक भी भेजेंगे, तो उस हिसाब से भी होता है सर। ओके, डिस्प्ले एड के ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में मुझे बताइए कि टारगेटिंग के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे? कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक। ये आप गूगल एड डिस्प्ले एड बता रही हैं? नहीं सर, नहीं, डिस्प्ले एड, गूगल डिस्प्ले एड का बताइए। गूगल डिस्प्ले एड नहीं सर, नो। सो मनसा, मुझे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझाइए कि आर यू अ टीम पर्सन और एन इंडिपेंडेंट प्लेयर? टीम पर्सन। यू आर अ टीम पर्सन। Yes. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल जहाँ पे आपको लगा कि ओके दिस इज वन सिनेरियो जहाँ पे मुझे रियलाइज होता है कि आई एम अ टीम पर्सन? सर जब मैं ग्लोबस में थी तो आई वॉज हैविंग अ टीम, मैं भी एक टीम मेंबर ही थी। तो वहाँ पे हम लोग एक टीम वर्क करते थे, तो वहाँ पे नॉलेज भी बढ़ती है और स्किल्स भी हम दूसरों से देख के हम लोग अपना स्किल्स भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये देन चीज, इफ यू विल चूज रिमोटली वर्क यस फ्रॉम होम, यस देन आपको नहीं लगता है कि यू वेरी मच डिस्कनेक्टेड विद द टीम? यस सर, वो है, पर थोड़ा रहता है बच्चों के साथ, थोड़ा ये भी रहना चाहिए ज़रूरत भी, पर मोस्टली मेरा है कि ऑफिस जाके ही काम करने का। What is your thought about women having work-life balance? जो कि आई एम श्योर बहुत बड़ा चैलेंज। बहुत बड़ा होता चैलेंज है। है सर। यस, सो हाउ डू यू थिंक विथ योर एक्सपीरियंस कि ये मैनेज किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है सर, बिकॉज जैसे बच्चे जाते हैं, यू आर सब एकदम शांत हो जाता है, दैट टाइम यू फील कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना चाहिए। आफ्टर किड्स कम, वो करियर हमारे लिए भी, हमने जो पढ़ाई की है, जो कुछ भी किया है, वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ इट, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली वी आर वीक, पर अपने इंडिपेंडेंट के लिए हमको करना चाहिए सर। ट्रू ट्रू। तो वुमेन कैसे वो टाइम निकालते हैं? मतलब यू आर सेइंग कि अगर किड्स चले गए, दैट पीरियड यू गेट, यस बट वो पीरियड यूजुअली जैसे आप बता रही 7:45 8 o'clock पे स्टार्ट हो जाता है, यस, बट जनरली जो ऑफिस स्टार्ट होते हैं वो 9 के बाद बाद होते हैं, स्टार्ट होता है। और किड्स जो हैं वो 3 o'clock तक घर आ घर जाते आते हैं, बट ऑफिस 6 to 7 के आसपास क्लोज होते हैं। सो हाउ दे कैन? सी सर, इमीडिएटली आके तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये पढ़ाई करनी है, वो हो जाता है। कभी ट्यूशंस गए तो वो हो जाता है, बाय दैट टाइम फिर खेलने चले जाते हैं। आफ्टर दैट व्हेन दे कम बैक, इवन आई कम बैक, तो वो हो जाता है मैनेज। हाँ, ये सारी जो एक्टिविटीज आप उनको उनकी लगा, एक्टिविटीज जो भी है उनके बाद तो मैं हुई। बहुत बहुत बढ़िया। ओके, सो इफ यू रीस्टार्ट योर करियर, यस बिकॉज आपने 2 बार रीस्टार्ट किया हुआ है, एंड एवरी टाइम, सेकेंड टाइम तो चलिए अच्छा रहा कि ग्लोबस था, सो दे एक्सेप्टेड यू as you had worked earlier. Now when you are restarting your career again, how do you see yourself
in 3 to 4 years? I'll be doing my career in digital marketing as well. I'll be pursuing. Might be now I'm a fresher. After 2-3 years, मैं थोड़ा higher post पे भी चली जाऊँ. मतलब higher मतलब उससे एक step आगे. Okay. So अगर आप अभी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रोल पे जाती हैं, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं उसके ऊपर एक प्रमोशन तो मैं पा लूं. विल यू बी हैप्पी विद दैट? नो, आगे तो बढ़ना ही है सर. ये तो फर्स्ट स्टेप है. ऑलराइट. एंड आपने बात की थी, हमने जब वीकनेस की बात की थी तो एक आपने मुझे वीकनेस बताया था इम्पेशेंट है. और कौन सा वीकनेस है? सेकंड एंगर सर. गुस्सा बहुत आता है. जो कि अब तो हम वीकनेस लोग को डर लग रहा है. नहीं, इधर ऐसा नहीं है सर, पर वो अपने आप पे थोड़ा ये होता है. इम्पेशंस हर किसी को भी होता है व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड या फिर कुछ भी काम करते वक्त लॉन्ग टाइम पे भी. इवन आप लोगों ने भी ये किया होगा. यस. तो वो एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है. और उससे मैंने ये भी सीखा है कि टेक अ डीप ब्रेथ और फिर अपना मतलब यू कैन स्टबर्ननेस है कि आगे तुम एक जिद है कि सर आगे कहाँ पे गलती हुई है वो भी तुम कर सकते हो. मतलब अगर काम नहीं हो रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, कहाँ गलती की है, अगेन यू कैन मेक इट ऑफ. ट्रू. एंड मुझे 2 स्ट्रेंथ बताइए जो मानसा के बिल्कुल एडेप्टिव. मैं बहुत एडेप्टेबिलिटी हूँ, लर्न फास्ट, हर इसमें ये कर लेती हूँ. और नई चीजें सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड दूसरी है So you are a continuous learner. यस सर. हाँ, दूसरी बता रही थी आप. दूसरी कम्युनिकेशन स्किल. उससे भी ये दोनों कॉम्बिनेशन से भी हम लोग मतलब मेरा स्ट्रेंथ है सर. I'm just asking, हस्बैंड आपके साउथ से हैं या फिर? यस, साउथ से है. वो लोग यहाँ पे सेटल्ड है. 2 जनरेशंस यहाँ पे सेटल्ड है. अच्छा. हाँ, मैं वही इसलिए मैं पूछा बिकॉज आपका एजुकेशन ही मैं देख रहा हूँ मुंबई से हुआ बीच में, फिर अहमदाबाद. अहमदाबाद सर मेरा मम्मी का घर है, तो मैं वहीं से बेसिकली. आपकी मतलब आपका मायका जो है वो अहमदाबाद. मेरे पापा भी बैंक एम्प्लॉय थे, तो वो है ना हर 3-4 साल में ट्रांसफरेबल जॉब होता था. तो मेरा भी एजुकेशन यही रहा है, कभी साउथ में, कभी अहमदाबाद, कभी ये. तो मेरा भी हर 3-4 साल में. नहीं, अच्छा है. सो एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर आपकी जॉब लगती है अभी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी? नाउ एज आई एम अ फ्रेशर और नासिक में जो अभी चल रहे हैं कंपनीज के, तो 15 to 18 मेरा एक्सपेक्टेशन है सर. ऑलराइट. एनी क्वेश्चन फॉर अस? नहीं, आई नो मेरा इंटरव्यू इतना तो ये नहीं था, पर And that we will give our feedback. फीडबैक बता दीजिए सर. You don't have any question? नो सर. All right. So now it is time for feedback. यस सर. मनसा, आपने देखिए पढ़ा है, पढ़ाई अच्छे से की है. That we can see कि आपके कुछ आंसर जो आपको पता है, you are able to recall. यस. लेकिन यही बात है कि कहीं कहीं पे दिखता है you want to recall it, यस. है ना. सो थोड़ी सी मेहनत आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में और थोड़ा डीप जाने में देना पड़ेगा. यस. ऐसे you know there is schema, यस. but you don't know what is schema. Yes. You know canonical is there, but you are not able to. यस. दूसरी जो चीज़ है कि आंसर करते समय अगर हम बहुत ज़्यादा फंबल करेंगे वर्ड्स यस. इधर उधर, तो जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, यस. तो उनको समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है. यस. बट देन आप ही ने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि इम्पेशेंट हैं ना, यस. तो हो सकता है कि जो आंसर प्रिपेयर कर रहे हो आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि अरे गलत है वो, ये होना चाहिए. यू कैन वर्क लिटिल ऑन दैट यस. पार्ट सो दैट जो ठीक है, यू कैन टेक टाइम while answering. You can take some time and then you can यस. properly frame your answer. So उस पर हम लोग थोड़ा काम करें. यस. बाकी देखिए आप में जो
ऑनेस्टी है, Yes. जितना ऑनेस्टली आपने बात की है, जो आपने वीकनेस भी बताया, मुझे बहुत ऑनेस्टली बताया, दैट विल प्ले इन फेवर ऑफ योर Yes. इंटरव्यू. लेकिन हाँ, उसको थोड़ा मोल्ड करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूअर. Yes. अगर आप किसी को बोलते हैं कि एंगर इश्यूज हैं, Yes. देन एंगर इश्यूज आपको डिफाइन करने पड़ेंगे. बिकॉज अगर आप वो नहीं करिएगा, अब मैं किस लेवल पे एंगर सोच रहा हूँ, आप नहीं, किस लेवल उतने हाई लगे. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस आंसर को स्पेशली थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा, Yes. या तो फिर इलेबोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो समझेगा नहीं कि कितना Yes. एंगर इश्यूज है. एंड जब हम बात कर रहे हैं ऐसे अपॉर्चुनिटी की भी जहाँ रिमोट है, Yes. कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. Yes. वो आपने स्ट्रेंथ बता के बहुत अच्छा किया. Yes. इट इज वेरी मच हेल्पफुल. बट जो इम्पेशेंट और एंगर वाला है, ऑनेस्टी इज अ वेरी गुड थिंग, बट उसके साथ ना थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जरूरी Yes. है. क्योंकि इम्पेशेंट तो जनरली, अब घरों में बच्चे हैं, बच्चे तबाही करेंगे और मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, ये तो नेचुरल है, लगभग हर पेरेंट्स करते ही हैं. Yes. बट क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही हैं? क्या आप अपने जो घर के लोग हैं, बाकी के जो Yes. लोग हैं, क्या उनके साथ भी वैसे हैं? तो अपने जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको सिर्फ बच्चों के साथ में डिफाइन मत करिए, बिकॉज वहाँ हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है. Yes. वहाँ पे एंगर जरूरी है. अगर आप नहीं पिटाई करेंगे तो बिगड़ जाएंगे. Yes. लेकिन क्या फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा सिनेरियो होता है, तो उसके ऊपर आप बोल सकते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा फ्री हुए. अदरवाइज इट इज़ गोइंग वेरी गुड. आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है. आपने सब चीज़ें मेंशन की हैं. लैंग्वेजेस में आपने कन्नड़ा और टुल्लू भी लिखा है. Tulu is my mother tongue, sir. दैट इज योर मदर टंग. Yes. क्या बात है. सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छे से फ्रेम्ड भी है. बट आप इन चीज़ों पे थोड़ा काम करिए. Yes. जो कंसेप्ट हैं, नाउ यू आफ्टर दिस इंटरव्यू यू विल बी एबल टू सी कि यार हमने ये पढ़ा, बट ये होता क्या है. Yes, sir. सो आई विल गो डीपर इन दैट. Yes. इस पे आप थोड़ा सर. ये कौन सी जो आपने जो प्रैक्टिकल चीज़ें उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. जैसे मैंने एसेट का जो क्वेश्चन पूछा था, कॉल आउट, तो कॉल आउट भी एक्सटेंशन और एसेट होता ही है. बड़ा उसमें कंफ्यूज हो गई, कॉल हो गई, कॉल आउट होता है ऐसा. तो जितना आप उसके बारे देखोगे, उसको यूज़ करोगे, उसको क्रिएट करोगे, तो आपको याद रहेगा. ओके, तो जितना आप पैनल पे ज़्यादा टाइम बिताओगे उतना आपको याद रहते जाएगा. ओके. ऑलराइट, थैंक यू सो मच Thank you, मनसा. sir. Thank you, sir.